Good afternoon, students. Good afternoon, students. I am Mohammed Haider Abbas, advocate. I completed my graduation from Aligarh Muslim University. I can see many faces जिनको मैंने यहाँ पढ़ाया है. बहुत सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत सारे नए फेसेस हैं. इससे पहले मैंने लीगल एडिटोरियल्स यहाँ पढ़ाए क्लैट के बैच को. और I completed my post-graduation in mass communication from Aligarh Muslim University. I just completed it, and I am currently running a law here. So today's seminar is based on resolving the enigma, which is law. So before the chief guest, I mean chairman and the faculty of law, Professor Dr. Muhammad Ashraf comes here and interacts with you, I am supposed to interact with you first. What do you understand by resolving the enigma, which is law? How do you perceive law? What prompted you to prepare for law? Any one of you? How many of you are going to be the first generation lawyers? How many of you are going to be the first generation lawyers? Don't be so timid and shy. Please raise your hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And most of you come from a legal background. No? First generation lawyer means कि आप पहले घर में ऐसे पहले हैं जो वकील बनने जा रहे हैं, है ना? तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि कितने लोग फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं यहाँ पर? आप हाथ उठे ना, ये नंबर्स देखने थे मुझे. हाँ, ये वाले. तो ठीक है. अब ये बताइए, दिस इज जनरल क्वेश्चन, व्हाट प्रॉम्प्टेड ऑल ऑफ यू टू कम एंड प्रिपेयर फॉर लॉ? क्योंकि एक जमाना था जब लॉ मजबूरी में किया जाता था, क्योंकि जब कुछ नहीं करते थे तो लॉ करते थे, राइट? लेकिन अब लॉ हैज, दिस फील्ड हैज बिकम highly competitive. There's a cutthroat competition in this field, especially with the introduction of national law universities. Also, the central universities have raised their standard of examinations and syllabi. So it is a pertinent question to ask that what prompted you to come to this field? Any one of you, please, may begin randomly, because we do not have time to interact individually. So I request you to come forward voluntarily, please. Law is a way of life. If you really choose to believe in law, then you should inherit it yourself first. So basically, when I thought that I would be pursuing law as my career, I was very young. Like I was in the 8th or 9th standard, and like I scored good marks in basically all subjects, not to brag, but the main thing with me was that I was not. अच्छा, इनवाइट किया तो आप करो, बट अभी करना है, हमने बैठ के मतलब इनके साथ ही देना है. हाँ चलिए, तो जब आएंगे तो मैं रैंडमली बोल दूंगा. वैसे मुझे उनके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं. सॉरी जी, क्या कह रहे थे? In my 8th or 9th standard, and I was not really sure what to do, after that. So everybody was like, क्या लेना है, humanities or science? So my teachers, they suggested कि biology ले लो, and like my friends were forced me to, forced me very particular career. So I went with humanities, and then later on in 11th and 12th, I figured out कि मुझे law करना है, and then finally I figured out कि I want to pursue judiciary. Right now I'm into judiciary, so that's it. Okay. But I believe that law is a way. Law is a way of life. That's what even every lawyer has to believe. That's what I believe. That's what every successful lawyer believes. That law is a way of life, because law teaches you, it's a codified common sense.
It's a codified common sense. It opens up your mind. It develops the sagacity to distinguish between right and wrong, what is good, what is bad, what is logical and what is illogical. So law teaches you many things. It develops a perception to understand the most complex issues in society. And what about others? Yes. The thing with mostly law and I'm going to read that from a very side that has been very complex and very complex and Okay. and I've been a very person. I'm very sad has been listening people all around me saying too low, too low. So when I decided to be a lawyer, ठीक है ओके we'll continue after the seminar. Okay. Once the chairman sir enters the classroom, please stand up, okay, and give a round of applause for him. Please round of applause. So we are extremely privileged to have amongst us Professor Dr. Mohammad Ashraf Sir, Chairman, Department and Dean Faculty of Law, Aligarh Muslim University. Professor Dr. Mohammad Ashraf Sir has an academic record of more than 30 years teaching at the undergraduate and postgraduate level, including various diploma courses. He has to his credit various cherishable research publications in numerous law journals, both national and international. And besides this, he's an ardent speaker, a distinguished jurist with an ability and sagacity to ponder over the most complex issues. I was privileged enough to be his student personally. I was taught law of evidence, commercial law, and criminology by him. And based on my personal interaction with him, I have the audacity to state one thing with great gusto. That Ashraf sir is a very noble, kind, gentle, and above all, a very humble being. Such people are rarely found in today's world, where power and position do not influence an individual's humility. So, and now since the Department and Faculty of Law is running in its most fortunate phase, because Professor Ashraf Sir being the chairman and dean, we are blessed to have organized today's seminar on resolving the enigma, which is law. Law is not just a codified common sense, but also brings it with it many complex issues with its ever-widening scope. So therefore, I now invite our chief guest, Professor Dr. Mohammad Ashraf, to enlighten us with his views. But also, I would request you to welcome Gaurav Vashne sir, who is also a faculty at Faculty of Law, Aligarh Muslim University. He teaches law, he teaches commercial law. I was not
fortunate enough to be his student, because when I left, he joined after I completed my graduation. So we are blessed to have today two great legal luminaries amongst us, Professor Dr. Muhammad Ashraf and Gaurav Vaishnav, who is an assistant professor at the faculty. So now I invite our chief guest, Professor Dr. Muhammad Ashraf, sir, to enlighten us with his views. Sir, please take this one. Yes. So good morning all of you. I am coming first time here, and therefore I do not have any idea about you people. What are you doing nowadays? Preparing for BLLB. All of you. PCSJ मतलब ये अभी BLLB के तो बच्चे होंगे, है ना? So I will tell you something about the contours of the this judicial services, and I would like to request all of you. I am fortunate enough to meet all of you, and therefore I start by beginning. Respected Gaurav sir, who is my student also, and he is my colleague also. And Pawan Vaishni, Abbas, Zaris Sahar, Ambar Vaishni, and Ambar Vaishni, all of you. I begin by saying good afternoon to all of you, and I hope that you will do very well. You are blessed enough to have this coaching from this department. Probably Pawan Saab and Amar Vaishni, they are working day and night for your upliftment, and therefore I tell you that here in this profession you are fortunate enough that you are preparing for judicial services. I had also been, I did not opt for PCSJ, but I was appointed in the army service. We have starting with this service in army. So I was selected there.
But at that time, I was doing LLM. And after completing LLM, I was appointed lecturer in the Department of Law. So I did not have an option to go anywhere. And by God's grace, I have, to my credit, 30 years complete in service and still 10, 11 years left. So I am very, very fortunate that I am serving the faculty both as dean and chairman in law presently, and therefore I start giving you some tips about the preparation which you have to make in order to be a successful judicial magistrate, whether you try for judiciary or higher judiciary, or even you are good enough, you may go to IAS and PCS executive also. So, behind all these things, you must be very cautious and very careful in opting the profession. Well and good, you have opted for judiciary law profession, which happens to be the most important thing, and this is the most, you can say, lucrative job today. Even the lawyers, simple lawyers, they are earning 3 lakh, 4 lakh rupees per month, and they do not have any, you can say, that they will regularly practice law. Some cases they take it, like the former Ram Jethmalani or presently Soli Soramji, or many lawyers who are fortunate enough to occupy very coveted posts in practicing law. So since this is the beginning of your career, and we are simply the teachers, and our duty is to train you and the students of law in their law subjects, and to make you prepare for judicial services. So the most important thing is that you should have a motivation for going to this service, preparing for competitions. So motivation, and normally we say that in the present era, it is said that catch the students very young, and then you must train them towards the profession. So first important thing is the hard work and honesty, and above all motivation, because these competitions are very tough competitions. They are not easy. So you will have to work very hard. You are knowing well that in the judicial service, the lower judiciary, which is commonly known as PCSJ, or service, provincial service, judicial service,
at the beginning. So the three important things, which is very, very important, are the preliminary stage. The second one is the mains examination. So preliminary means that you have to be selected for preliminary examination, and then the main thing is you have to prepare for mains examination, and finally the interview, which interview is there to check your mental ability, your personality, how you will look like magistrates in the High Court. You are knowing well that preliminary stage, it will be MCQ questions, multiple choice questions, and then in the mains examination, the descriptive type, and finally, if selected, you will have to work hard for Viva Voce examination. And I tell you, I had been examiner many times for preliminary, for mains, and for final Viva examination, interview जिसको हम बोलते हैं, in Allahabad. So I saw that how genius students are there, but the only thing is their commitment, motivation to this profession. So you have to look what are the important things for preparing judicial examination. One thing is that preliminary thing is, now I am telling you the important things which you will have to keep in your mind. First thing is that you have to select the state. Suppose you are in UP or any other state, maybe Rajasthan, maybe Madhya Pradesh. दिल्ली में जो एग्जामिनेशन होता है वो DGS होता है, दिल्ली जुडिशियल सर्विस, उसका सिलेबस कोर्स बिल्कुल अलग होता है यूपी जुडिशरी के हिसाब से। दूसरी यूनिक फीचर यहाँ ये है यूपी में कि लड़कियों के लिए रिजर्वेशन है 20 to 30%। ये रिजर्वेशन है गर्ल्स के लिए। So it is very good if they prepare in that area. So the exam pattern in the judiciary examination is, first of all, the selection of the state. Suppose you are born in UP and you want to give examination of UP Judicial Service. That the most important thing is that you select the state. After selecting the state, you will find that rest of the things comes into picture. Another very important feature is you have to look into the previous papers at least for 10 years.
you have to look in order to get an idea about judicial examinations, about the areas which are very important for judiciary. So therefore, you start with reading the question paper first for at least 10 years in the beginning. And once you get acquainted with these subjects, you restrain yourself on the papers for 5 years extensively. But all this thing required is that you have to be very serious and very much motivated. Because I have seen especially the girls in my faculty, also I have seen the girls from Uttar Pradesh everywhere, that they are very studious, hardworking, and vocal also. After that, how to begin for this course? First of all, because you are not having any time to consult the bulky books, but you have to begin with reading whereas you are knowing well that they are the crux of every subjects. अब उसमें केसेस भी होते हैं और उसमें जो है वो रेफरेंसेस होते हैं. तो whereas of all subjects that is necessary, you have to read it once, twice, and again and again. After that, after the selection from in preliminary, you have to prepare for subjective examination that is known as mains examination. So make a habit of reading and revisiting them again and again and every day. After that, you have to be very serious in distinguishing sometimes small things like the difference between may and shall. होता है ना, ही मे और ही शैल. मे जो होता है डिस्क्रिशनरी होता है और शैल जो है वो कंपल्सरी हो जाता है. तो दिस distinction is very much in law. So you will have to look at these topics. Then, after reading the variants, it is not necessary that each and every topic you have to concentrate very much. Try to look. That's why I said for the previous 10 years paper, which you will consult, you will be able to get an idea what type of questions are asked. Because at the beginning it is simply a preliminary stage, MCQ questions. So you have to prepare the variants very carefully. It is also important for some of you who are very curious to consult the books, and that too who are well-known books. You have to look. Now then,
certain sections in the barracks, because they are not very important, they may be deleted. Like in Indian Penal Code, IPC जिसको हम बोलते हैं, Chapter 7, 9A, 11, 12, 13, 14 and 18. These are the sections which you may not concentrate much because they are not very important. Now, on ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, बट इन रेस्ट ऑफ द बैरक्स मैंने तो आईपीसी के बारे में बताया, क्योंकि इंसिडेंटली मैं क्रिमिनल लॉ का ही स्टूडेंट शुरू से रहा हूँ और मेरा स्पेशलाइजेशन भी उसी में है, मेरी पीएचडी भी उसी में है, इसलिए आईपीसी पे मेरा बहुत कमांड है। फिर उसके बाद comes that landmark judgments. Landmark judgments you have to consult before you appear in examination of law. You must be very clear of well-known landmark cases and especially the case laws of the last 2 years. They are also crucial for the current affairs section. Then very important thing is that do not burden yourself with bulky reference books. बहुत मोटी किताबों की जरूरत नहीं है पढ़ने। Fat references books are not needed at this stage, but only first of all the barracks and then certain important writers you can consult. हम लोग तो लॉ में जो साइनॉप्सिस देते हैं, जो मोस्टली सभी लोग देते हैं, तो उसमें लिखा हुआ होता है कि कौन से सब्जेक्ट्स या कौन से ऑथर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो यू कंसल्ट दोज। फॉर क्लैरिफिकेशन, if you are confused somewhere, then you may consult the books. You can refer these books. If not, again you are not able to understand, consult the teachers also. And make synopsis of all topics. Synopsis का मतलब यह है कि बहुत ही क्रक्स वे में आप साइनॉप्सिस बनाएं। जहां जरूरत पड़े, you use the charts, the diagrams, and the pictorial representation also. For preparing law examination, make ample use of charts, diagrams, and graphs also, because it is not necessary, even not possible also, to read and write each and every law subjects. You have to study, but the important thing is you have to study in a very very serious mode. 10 चीजें लिखे मत चलिए दिमाग में। अगर आप लॉ के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, तो यू शुड बी एबल टू वर्क एंड प्रिपेयर फॉर लॉ एग्जामिनेशंस ओनली।
और इसके साथ नहीं कि चलो एग्जीक्यूटिव भी दे लें, चलो अगर एलएलबी हो गई तो चलो उसमें आईएएस में बैठ जाएं, या कोई और स्टाफ सिलेक्शन कॉम्पिटिशन्स होते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी वाले एग्जामिनेशन। तो इसमें नहीं, यू हैव टू कंसंट्रेट योरसेल्फ or frustrated in case you are not selected, because कॉम्पिटिशन हो या कोई एरिया हो, इसमें ये याद रखिए कि कभी कामयाबी एक बार में नहीं मिलती है। यू हैव टू सक्सीड अगेन एंड अगेन अनलेस यू हैव ए फाइनल से। So try and try again unless you succeed. That is the major formula. That उसमें मेहनत करते रहिए जब तक कि आप कामयाब ना हो जाएं। तो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग इज कि सबके घरों में शीशा होता है, एक कमरे में शीशा रखा हो या बाथरूम में लगा हो, तो अपनी तैयारी करें अच्छी तरह और शीशे के सामने खड़े होकर आप बोलें। इससे आपके ओरली हिम्मत होगी बोलने की, वर्बल एक्सप्रेशन होगा, वर्बल एक्सपोजर होगा। क्योंकि देखिए इंटरव्यू में कम से कम 5 या 6 लोग होते हैं जो अलग अलग स्टेट्स के होते हैं, हाई कोर्ट के जजेस भी होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं और एक आध और ऑफिसर्स होते हैं। कभी जुडिशरी कोई और आदमी आ गया, हाई कोर्ट का तो खैर जज रहेगा ही। तो इतने लोगों के सामने आपको फेस करना है। सो यू हैव टू वर्क फ्रॉम दैट एंगल ओनली। सो कंसल्ट बिफोर द मिरर if you are prepared very well, well and good, but looking at the mirror, you will be able to understand where you are lacking, what are your lacunas. तो इसको आप लोग याद रखिए। I have told you that don't get frustrated, panic or disheartened if you are not selected bus. बार बार आप मेहनत करें और आप ये सोच के करें कि इस दफा मुझे सिलेक्शन अपना कराना है हर हाल में। तो विद दैट स्पिरिट यू हैव टू वर्क। सेकेंडली, जब ये आप कर लेंगे तब उसके बाद यू हैव टू रिवाइज एवरी डे सम सब्जेक्ट्स डेली। कुछ सब्जेक्ट आज पढ़ा, वो सब्जेक्ट कल छोड़ दीजिए, दूसरे सब्जेक्ट पढ़िए, फिर तीसरे दिन तीसरा सब्जेक्ट पढ़िए। तो इस तरह से हर सब्जेक्ट की आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी। लेकिन ये सब जब भी पॉसिबल हो जब आपके पास टाइम हो और आप बहुत सीरियस हो।
So you have to work in that angle. Do not stop or go back, but try to be very much optimistic for future. So please do that. Failures and success, they mutually coexist. ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं. जैसे मैं आपको बता चुका हूं, अगर नाकाम हुए आप एक बार या दो बार, तो उसमें डिसहार्टेंड होने की कोई जरूरत नहीं है. आप लोगों की बहुत यंग एज है. ट्राई टू वर्क मोर एंड मोर हार्ड एंड डोंट क्रिएट एनी प्रॉब्लम्स फॉर योर एल्डर्स, फॉर योर पेरेंट्स. बहुत से बच्चे होते हैं नीट में या एमबीबीएस में, अगर नहीं हुआ तो बस फ्रस्ट्रेट होकर उन्होंने फांसी लगा ली या सुसाइड कर ली. सो प्लीज फॉर गॉड से नेवर थिंक फॉर दैट. You work hard and inshallah you will be selected one day or the other. So these are some important tips which you will have to keep in mind for clearing the preliminary examination, and then for the mains you are knowing that descriptive papers will be there, so you will have to consult the books. और ये जरूरी नहीं है कि सब बहुत हाई फाई किताबों से आप लोग पढ़ें. कम किताबों से पढ़ें, लेकिन अच्छी किताबों से पढ़ें, जो कॉम्पिटिशन्स के हिसाब से भी बहुत अच्छी किताबें हैं. हर जगह ये किताबों के बारे में मालूम है. हमारे डिपार्टमेंट में तो सारे किताबों के नाम लिखे हुए हैं कि ये किताबें आपके पास होना चाहिए. Irrespective of the fact what books are available in your department, आप होम स्टडी के लिए अपनी किताबें खरीद लीजिए, क्योंकि उसमें जो है इंग्लिश बहुत इम्पोर्टेंट है, उसमें जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स है, सब चीज़ें ये आती हैं, स्पेशली इन द प्रिलिमिनरी स्टेज. देन इन मेंस द मेन subjects which are there, suppose 10 subjects are there, तो सबकी तैयारी बराबर होनी चाहिए. और ये नहीं कि 15 दिन में पढ़ लिया और दे दिया, उसमें कुछ आपको हासिल नहीं हो. देखिए, कुछ पाने के लिए बहुत सी चीज़ें खोनी होती. आई वॉज सेलेक्टेड इन जामिया मिलिया ऑल्सो एज लेक्चरर बिफोर माई अपॉइंटमेंट इन द फैकल्टी, बट एट दैट टाइम जैसे जैक के साथ हुआ, जज एडवोकेट जनरल, मेरा अपॉइंटमेंट हुआ, लेकिन पेरेंट्स ने मोहब्बत में मुझको जाने नहीं दिया आर्मी की सर्विस में कि हम नहीं भेज सकते. मैं एलएलएम कर रहा था उस वक्त. उसी ज़माने में एलएलएम करते करते, हालांकि यहाँ भी उसी साल में हो गया, लेकिन उससे 2 महीने पहले जामिया मिलिया में भी हो गया. लेकिन मेरे फादर चूँकि यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और बहुत बड़ी पोस्ट पे थे और फिर रिटायर हुए, तो उनका एक सपना ये था कि आप कम से कम इसमें लॉ में आप पीएचडी करें कम से कम. मुझे ज़रूरत नहीं है कि आप अभी कमाने के लिए जाएं, बहुत मेहनत कीजिए और हो सकता है ऊपर वाला आपकी यहीं सुन ले और यहीं आपका सिलेक्शन हो जाए. तो इन दैट सेंस आई वॉज वेरी वेरी फॉर्चुनेट दैट इन माई होम इन अलीगढ़ आई वॉज सेलेक्टेड एज लेक्चरर. देन आई वॉज सेलेक्टेड एज उस जमाने में रीडर होता था, जो आजकल एसोसिएट प्रोफेसर होता. फिर उसके बाद फाइनली होता था सिलेक्शन एज प्रोफेसर. बाय गॉड्स ग्रेस आई हैव कंप्लीटेड 12 years एज प्रोफेसर ऑल्सो, एंड 30 years मेरी सर्विस हो चुकी है. इंशाल्लाह जिंदगी रही तो 10-12 साल और भी चलूंगा मैं, और हो सकता है इससे बड़ी चीज़ें मिल जाएंगी. तो बस ये सब चीज़ें कुछ टिप्स आपको देना था. हो सकता है फिर आपसे मुलाकात हो, क्योंकि मैं बहुत इलाहाबाद भी गया हूँ, अपने यहाँ आरसीए से भी जुड़ा हुआ हूँ, रेजिडेंशियल कोचिंग से, तो मुझे कुछ आइडिया है चीज़ों का. तो मैंने यही सोचा कि किताबें तो सभी लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन बिगनिंग कुछ चीज़ें
आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। तो बेटा आप लोग इस तरह से मेहनत करें। आई विश बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, एंड यू in case you have any problem, you may consult Mr. Pawan or Amar. He is also Amar Vashne, or Gaurav Vashne, who is my student also, and he is my colleague nowadays in law faculty. तो आप लोग को कोई परेशानी हो तो यू में ask these questions or they will pass it to me. ये चीज़ें समझने में आप लोगों को कोई परेशानी हुई हो तो बताइए, कोई चीज़ ना समझ में आई हो। हालांकि आज मैंने बहुत प्रिलिमिनरी ये सब बातें बताई हैं, तो बताइए कोई परेशानी। स्पेशली द गर्ल्स, लड़कियां ज़्यादा दिख रही हैं, लड़के तो कम दिख रहे हैं, क्या चक्कर है? यही मतलब इरादा कर रखा है कि आप ही लोग क्वालिफाई करेंगे, लड़के नहीं करेंगे क्वालिफाई? या ये पता चल गया है कि रिजर्वेशन है लड़कियों का 20-30%? वो एम्पावरमेंट तो है, लेकिन मेहनत भी बेटा यही लोग करते हैं, ये भी बता दूं। मेजॉरिटी यही लड़कियां मेहनत करती हैं। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑल इंडिया बात कर रहा हूँ, हर जगह, एंड स्पेशली द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। हमारे लड़के भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनका रिजर्वेशन नहीं है। इन लोगों का तो रिजर्वेशन है 20%, 30%। सिर्फ लड़की होने पे ही इनको इतना रिजर्वेशन है। तो ये लोग जरा सा सीरियस हो जाएं, जरा सा मेहनत कर लें, तो इनका अपॉइंटमेंट बिल्कुल पक्का है जुडिशरी में। तो आई विश फॉर ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट, दैट यू वर्क वेरी वेरी हार्ड। Sir, there are many students who are for no entrance also, like B, LLB, AMU. तो ये तो हो गया ना, आप बताने से क्या फायदा है? नेक्स्ट ईयर यहाँ बैठे हुए हैं, अच्छा। तो खाली पीसीएस जेई थोड़ा सा अगर आप उनको उसके बारे में बताएं। आप लोगों ने BLLB का पेपर दिया है क्या? मतलब अगले साल देंगे, इस साल नहीं दिया? किसी ने नहीं दिया? तो आप लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं बताइए, फिर मैं बताऊंगा आपको आप कैसे मेहनत करें। बताइए। आप लोग BA BSc के होंगे मोस्टली। BA BSc क्या मतलब 12th किया होगा आप लोगों ने, या तो आर्ट्स के होंगे या साइंस के होंगे। और BLLB के तो मालूम है, इन आवर डिपार्टमेंट ऑल्सो एंड एनीवेयर एल्स दैट 5 years कोर्स इज देयर। हम लोगों के ज़माने में तो 3 year कोर्स चलता था, लेकिन वो BA के बाद होता था, तो उसमें 1 साल का हम लोगों का नुकसान होता था। खैर, नुकसान और फायदा तो ऊपर वाला जानता है किसको क्या देना है। मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि दोनों चीज़ें एकदम मेरे सर आ जाएंगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, जो मिलना था अल्लाह ने दिया मुझे। तो सबसे पहले तो लॉ की एंट्रेंस की तैयारी करने के लिए अगेन वही बात है, मोटिवेशन। 10 चीज़ों के बारे में मत सोचिएगा, मोटिवेट अपने को कीजिए सिर्फ एक तरफ कि हमें लॉ करना है, और लॉ करने के बाद जुडिशरी में जाना है। जब तक आप लोग ये नई कमिटमेंट करेंगे, जब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि आपका अपना मोटिवेशन। यंग स्टेजेस हैं आप लोगों की। अभी बच्चा था, सबके साथ मेरी मीटिंग थी RCA डिपार्टमेंट में, तो वहाँ और मेंबर्स भी थे, कई जगह के फैकल्टी के डीन्स थे। हर आदमी ने यही बात कही कि समझाने से कोई फायदा नहीं है। आप इन लोगों से कोशिश करें, टीचर्स, कि अपने जितने बच्चे हैं उनको काउंसिल करें, उनको मोटिवेट करें कि आप लॉ में आए, और उसके लिए आपको उसी तरह से मेहनत करनी पड़ेगी। ये सब्जेक्ट आपको मालूम है, लॉ का सब्जेक्ट इस वक्त टॉप का सब्जेक्ट है। लोग कहते हैं इंजीनियरिंग और डॉक्टर, मैं कहता हूँ इस वक्त लॉ का जितना प्रोफेशन में जितनी डिमांड है, कोई मार्केट पे कहीं नहीं है। आजकल इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरा भाई खुद एक वहाँ डिपार्टमेंट में डायरेक्टर है, तो उनके यहाँ इंजीनियर्स और ये MBA ये क्लासेस होती हैं। आपको हैरत होगी, स्टूडेंट्स फ्रॉम द AMU ब्रांच, उन्होंने इंजीनियरिंग किया
या मैनेजमेंट का कोर्स किया, एंड दे आर अपॉइंटेड एट 15,000 10,000 रुपीज। तो हालत अब ये हो गई है। प्रैक्टिस का तो खैर ये है कि मेडिकल प्रैक्टिस है, मान लीजिए कि कितने लोग, तो खैर यूनिवर्सिटी में तो बहुत कम लोगों का कई चांस सिलेक्शन होता है, तो 100 लड़के के साथ अकेला मैं एक लड़का था अपने डिपार्टमेंट का जिसका सिलेक्शन हुआ। इसी तरह होता है, एक दो लोग हमारे ये गौरव साहब है, अपने बैच में ये सबसे पहले आदमी है जिनका हुआ। तो ये मुकद्दर भी साथ देता है, और आप समझ लीजिए कि मुकद्दर भी उसी का साथ देता है जो अपना खुद रास्ता ढूंढता है। उन्होंने इतनी मेहनत करी, मुझे मालूम है ये वहाँ दिल्ली में थे, बहुत अच्छी सर्विस में थे, तो उसमें कमीशन था उसका, कौन सा कमीशन था उसका, यूपीएससी वाला, यूपीएससी कमीशन में, जिसका मैं भी एग्जामिनर बहुत दिन रहा हूँ। वहाँ पे वो सर्विस करते थे। एएमयू के लिए एक्सटर्नल हो गए थे, जाहिर जमाना हो गया था, लेकिन अपने अंदर इतना टैलेंट था, ही मेड हिज पोजीशन और डायरेक्टली परमानेंट लेक्चरर होके आए डिपार्टमेंट। तो द होल डिपार्टमेंट ऑफ लॉ is indebted to him कि people like Gaurav must be there in the department। और मेरी शुरू से ये वो रही। अभी मैंने अपॉइंटमेंट भी 20 लोगों का किया है। मेरे आगे मेरिट के अलावा कुछ भी नहीं है, ना कोई पैसा, ना रिश्वत, ना किसी का पैसा। इतना दुनिया का पैसा पड़ा हुआ है मेरे डिपार्टमेंट। मैंने सारा पैसा लौटवा दिया। मैंने कहा मुझसे जब मतलब ही नहीं है तो रखने से क्या फायदा। और लॉकडाउन में पिछले 2-3 साल में पैसा लाखों के तादाद में आया, मोट कोट का आया, प्रैक्टिस का आया, वो सब पड़ा हुआ है। अभी मैंने अपने क्लर्क से कहा कि ये सारे पैसे की इन्वेंटरी बना के आप इसे लौटा दें फाइनेंस ऑफिसर को। तो आदमी ऐसे काम करता है। हम अगर यही सोचने लगे कि इतना पैसा ऐसी वो लूटो और खाओ, तो कभी आदमी पनप नहीं कर पाएगा। और मेरे फादर ने यही सिखाया मुझको, बेटा जिंदगी में आधी रोटी खाना, लेकिन खाना अपनी ईमानदारी। कभी बेईमानी की रोटी मत खाना, गलत काम मत करना, ना किसी रिश्वत से। और आपके लिए भी बहुत बड़ा लेसन है, कभी जिंदगी में रिश्वत मत लेना, कभी किसी का गलत काम मत करना। जो मेरिट पे हो आप उसका कीजिए, कोई भी है। हमने अभी किया, एक लड़की क्रिश्चियन है, उसका अपॉइंटमेंट किया। तो ये तो अपनी मेहनत की बात है, और ये है कि वो ऑलराउंडर थी हर तरीके से, तो उनका अपॉइंटमेंट हुआ। अब पीएचडी चूंकि कंपलसरी कर दिया है लेक्चरशिप में, तो सारे बच्चों का पीएचडी वाले मेरिट पे हुआ है, तो ना होने का तो सवाल ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वो रिजल्ट भी आ गया, बच्चा साहब ने सबको अप्रूव भी कर दिया। सब लोग अपने अपने जगह चले गए, मुर्शिदाबाद, मल्लापुरम, एएमयू, अब किशनगंज में भी सेंटर खुलने जा रहा है लॉ का। तो लॉ का काफी अब डिमांड भी हो गई है। डिमांड तो खैर शुरू से रही है, लेकिन जब से बीएलएलबी हुई है और सिलेक्शन जुडिशियल सर्विसेज में हमारे यहाँ का बहुत ज्यादा है, तो इसलिए इसकी डिमांड भी उतनी बढ़ गई। आजकल एमबीबीएस को लाइक नहीं कर रहे बच्चे, और इंजीनियरिंग में कोई जाना नहीं चाहता। जिसको देखो वो लॉ की तैयारी कर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव अ मोटिवेशन टू वर्क इन दैट लाइन। सेकेंडली, लॉ में तो जनरल सवाल होता है, आप जानते हैं, ऑब्जेक्टिव सवाल हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। तो उसमें कभी सोशल साइंस से आ रहा है कोई सवाल, कभी जनरल नॉलेज से आ रहा है, कभी ये इससे आ रहा है, करंट अफेयर्स से आ रहा है। तो यू हैव टू बी ascertain that what are the subjects which you will have to take। वो तो कंपलसरी सब्जेक्ट है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो यू प्रिपेयर फॉर दैट। मैं समझता हूँ सबसे अच्छी पढ़ाई अपनी खुद की अपनी मेहनत होती है, सेल्फ स्टडी। ठीक है, कोचिंग वगैरह मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। अब ये लोग हैं दिन रात लगे रहते हैं, पवन है या अमर साहब हैं, मुझे सब मालूम है।
कितना ये लोग लेते हैं। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में कई कोचिंग है, लेकिन इन सब चीज़ों में कुछ होती नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि आपको अनलेस यू हैव द मोटिवेशन यू कैन नॉट डू एनीथिंग। पहले तो आपका माइंड मेकअप करें कि मुझे ये करना है। यंग स्टेज में आप स्टार्ट करें तो बहुत अच्छा है। 2-3 आपको अटेम्प्ट मिलेगा, लेकिन जितना आप देर करेंगे उसमें आप ही का नुकसान होगा। तो आप ये स्टार्ट करें, शुरू से अपना माइंड मेकअप कर लें। अगर आर्ट कॉमर्स के आप हैं या इवन साइंस के हैं, मैं तो बीएससी करने के बाद लॉ में आया। उस जमाने में लॉ जो था वो 3 ईयर था, लेकिन बीए बीएससी के बाद था, तो मैं बीएससी करके आया। तो ऐसी बात नहीं है, आदमी तो कहीं भी राइज कर सकता है। तो ये करें आप लोग। दूसरी बात यह है, अच्छी से अच्छी किताबों को पढ़ें। लॉ में तो पढ़ें ही पढ़ें, इसके प्रिपरेशन के लिए भी जो अच्छी किताबें हैं उन किताबों को आप लोग कंसल्ट करें। बुक्स आर अवेलेबल एवरीवेयर इन द शमशाद इज ऑल्सो अवेलेबल। आज़ाद लाइब्रेरी में सारी किताबें मौजूद हैं। मैं अपने यूनिवर्सिटी कैंपस की बात कर रहा हूँ, और आपका रामघाट रोड पे किताबें अवेलेबल हैं, तो वहाँ से कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करें आप लोग। करंट अफेयर्स है और 1-2 मैगजीन्स हैं जो करंट अफेयर्स की हैं, वो किताबें आप लोग पढ़ते रहें। जनरल नॉलेज की किताबें पढ़िए और कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। पहली ज़रूरी चीज़ ये है कि कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। अनलेस यू हैव द क्लैरिटी यू कैन नॉट सक्सेड। तो ये आप लोग कर लें और इंशाल्लाह बिल्कुल अपॉइंटमेंट आपका पक्का है, सिलेक्शन बिल्कुल पक्का है। तो ये आप लोग करें। जब कभी आपको ज़रूरत हो, यू फील फ्री टू कंसल्ट मी, टू कंसल्ट गौरव, ही माई जूनियर एंड ही कुलीग ऑफ माई डिपार्टमेंट। आप इनसे कंसल्ट कर लें, अमर साहब से करें या पवन से कर लें, तो ये सब लोग आपकी हेल्प करेंगे। किसी किस्म की कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो यू कैन कम टू अस, वी विल हेल्प यू। और कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है डिपार्टमेंट। आजकल तो लॉकडाउन की वजह से जा नहीं रहे, बहुत कम लोग जा रहे हैं। हम भी जाते हैं, रोज़ नहीं जाते हैं, कभी चले जाते हैं, 2 दिन नहीं गए। घर से ही सारा काम हो रहा है, वर्क फ्रॉम होम। तो आप लोग आइए, मोस्ट वेलकम। और हमें तो बहुत खुशी होगी, आप हमारे डिपार्टमेंट का पार्ट बने तो बहुत खुशी की बात है। आप लोग मेहनत करें। विश यू बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। ये बहुत ऊंचा बनवाया यार तुम लोगों ने, थोड़ा सा नीचा होता ना। Thank you so much, sir, for such an enlightening lecture. And really, it was indeed, it's going to be very helpful for every one of us, not only the students, but every one of us. Thank you so much. Now, I would request Mr. Gaurav Vashne, sir, to please come and say a few words about the institute and about the competitions and a good message for the students. Please, sir. ये चल रहा है ना, ये चल रहा है, ये चल रहा है। Respected Professor Ashraf Saab, Dean Chairman, Department of Law, and my teacher. पवन से तय नहीं हुआ था कि मुझे बोलना है, बट अब चांस दिया है तो फिर मैं बोलता नहीं। और सर ने मेरे बारे में जो बताया, दैट इज द पॉजिटिव साइड ऑफ माइंड, बट आई विल टॉक अबाउट द नेगेटिव पर्सन, and then I will talk about that how to come up with regard to that.
I am a 6th class failure. 7th, 8th, 9th supplementary pass. 10th class, 3rd divisioner pass. Only power and only source behind my today is my mother. She never left a hope in me that I will be able to do something in my life. उनकी मार्ग ने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया है. And I was the student. I've been from 3 Dots School. When there was a parents-teacher meeting, all teachers always search for my mother. And when she been there, and all teachers started doing that, and in that parents-teacher meeting, I tell you, at least 10 to 12 slaps I received from my mother. And those 10 to 12 slaps are the battlefield for me, which has made me today what I am today. I thank my mother for that. बिकॉज अगर वो चाटे मेरे को नहीं पढ़े होते, कोएड में पढ़ने के बाद जब आप समझते हो आज तो खैर लाइफ बहुत चेंज हो गया, तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता. और मेरी माँ ने कभी भी मेरे से कभी हिम्मत नहीं छोड़ी कि ये नहीं पढ़ेगा, और हमने वो पूरी कोशिश करी कि हम नहीं पढ़े अपनी लाइफ में. आपको मैं बताता. एंड देन इन 11th and 12th आई टॉप द जाकिर हुसैन स्कूल, and then I get admission in PLLB and BCom in Aligarh Muslim University, but I get through into BLLB examination, and there my life changes a lot because I get very good friends, very good teachers in my life. I tell you, because good teachers are the pathways with regard to your career, and ultimately what I receive from Aligarh Muslim University, that we get a lot of motivation when good students are there. And the Maulana's library, I tell you, even today, me and my one friend who is an additional district judge right now in Hadras, Sushil, we used to close that Maulana's library gate at 12:30 in the night, and then we come back. And we have a cycle. मैं आपको ये और बता दूं, मैं बहुत मध्यम वर्गीय परिवार से रहा हूँ. मैं बहुत पैसे वाले परिवार से नहीं रहा. जब मैं 10th क्लास में था तो मेरे फादर रिटायर हो गए थे, तो मैं पेंशन में पढ़ा पूरा. एंड थैंक्स टू माय पेरेंट्स एट दैट टाइम की दे हेल्प मी अ लॉट. तो जो लोग ये सोचते हैं कि सुविधाओं से जीवन बढ़ता है, मैं सोचता हूँ जितनी कम सुविधा आपके पास होगी आपका जीवन उतना अच्छा रहेगा. और आज उन्होंने हमें इस लायक बनाया कि आज हमारे पास सारी सुविधाएं हैं. एंड आई एम 3 times फेलियर इन जुडिशरी इंटरव्यू. मैं ये भी बताऊं आपको, आई नेवर बीन एबल टू गेट थ्रू दोज 3 times जुडिशरी सर्विसेज, एंड आई हैव कंप्लीटेड माय PhD इन अ रिकॉर्ड टाइम, 2 years 8 months. Under the supervision of Professor Iqbal Ali Khan साहब, I say he is my God, I tell you, because उनसे मेरे को जो कुछ मिला, बहुत कुछ मिला. लेकिन आपको एक और पॉजिटिव साइड बताता हूँ. दिस इज माय 5th सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब. मेरे को प्रदेश सरकार ने कभी भी नहीं लिया. स्टेट गवर्नमेंट नेवर रिक्रूटेड मी. आई ऑलवेज बीन रिक्रूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. सो इफ यू टारगेट इन योर लाइफ, देयर इज नथिंग शॉर्ट. एक 6ठी क्लास फेल इंसान, 10th क्लास 3rd डिवीजन इंसान आपके सामने बैठा है, और मेरे को लगता नहीं है यहाँ कोई ऐसा होगा जो 6ठी क्लास में फेल हुआ होगा और 10th क्लास में 3rd डिवीजन मार्क्स जिसके होंगे. टू बी वेरी फ्रैंक, यू हैव टू मोटिवेट योरसेल्फ. आपको दुनिया में सिर्फ आप हरा सकते हैं, और आपको दुनिया में कोई नहीं हरा सकता. आपकी सोच आपको कहीं पे भी ले जा सकती है. यू हैव टू बी वेरी मच पावरफुल. यू हैव टू बी सो मच मोटिवेटेड. और जीवन में अपने माँ बाप की सेवा जरूर कीजिए, क्योंकि उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है मेरे लिए. मैं मानता हूँ उस चीज को, और उसके लिए आपको जो भी कुछ करना पड़े आप करिए, और ऊपर वाला आपको हर चीज से नवाजेगा, जो भी चीज के लिए आप बने हुए हैं, और आपको उससे ज्यादा मिलेगा. हमेशा एक चीज और याद रखो, तैयारी केवल एक चीज से शुरू होती है, आपकी सोच से. चाहे वो BLLB एंट्रेंस हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो कोई भी कंपटीशन हो, व्हाटएवर बी दैट. अगर आपने मन में ठान लिया है तो दुनिया में आपको कोई नहीं हरा सकता. लोग बात कहते हैं कि साहब सोर्स है, फलाना दिखाना, कुछ नहीं है. आई एम अ पर्सन हु हैव नथिंग इन दिस फील्ड. आई टेल यू, मैं अपने पूरे परिवार में, पूरे खानदान में पहला लॉयर था. आई हैव नो बैकग्राउंड. आई टेल यू, आई हैव ओनली वन बैकग्राउंड ऑफ माय हार्ड वर्क, एंड आई हैव अ लॉट ऑफ आशीर्वाद, आई टेल यू, ऑफ माय सीनियर्स. आई ऑलवेज बिलीव इन दैट, एंड लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स ऑफ माय टीचर्स आल्सो. मैंने जीवन में पूरी पढ़ाई कर ली, लेकिन कभी भी आज भी मैं अपने टीचर्स को सबसे पहले रखता हूं, क्योंकि मेरे धर्म में गुरु पहले आते हैं, और गुरुओं का पूरा सम्मान करना चाहिए. जितना भी जहां पर भी आपको मिले, आपको कहीं नहीं पता आपको कहां क्या मिल जाए. सो ऑलवेज बिलीव यू कैन डू इट. अगर आपने मान लिया है ना, तो आप कुछ भी कर जाओगे. ये जीवन में याद रखो. और बिना हार्ड वर्क के, बिना मेहनत के किसी ने कुछ अजीब नहीं करा.
एंड थैंक गॉड कि मेरे टाइम में गूगल, व्हाट्सएप, फेसबुक नहीं थे। एंड मोबाइल इज वन ऑफ द बेस्ट रेस्ट्रिक्शन आई टेल। अगर आपको अपना जीवन बनाना है तो खुद मोबाइल बनिए, खुद की फेसबुक खुद बनिए। आप फेसबुक पे अपने प्रोफाइल्स में जब कुछ चीजें डालें ना तो दुनिया उसको सलाम करे, कुछ ऐसा फेसबुक में होना चाहिए। उस फेसबुक का कुछ नहीं जो सोशल मीडिया पे चल रहा है। उस फेसबुक को तब पूछा जाता है जब आपकी फेस खुद हो। आप अपनी फेसबुक का फेस खुद बनो, अपनी प्रोफाइल खुद क्रिएट करो, और व्हाट्सएप का डीपी ऐसा होना चाहिए आपका, आपके काम को रिकॉग्नाइज करे, पीपल रिकॉग्नाइज यू। दिलों में रहना सीखो दोस्तों, दिमाग में तो दुनिया के आप लोग रहोगे वैसे भी। आप आगे बढ़िए, गिराने के लिए आपके पास दुनिया बैठी हुई है। आप आगे बढ़ना सीखो, आपको खुद बढ़ना है। और नेवर थिंक कि आपके रिसोर्सेज शॉर्ट है। मैं कभी भी नहीं कहूंगा आपसे रिसोर्सेज शॉर्ट है, आपकी सोच छोटी है। आपके रिसोर्सेज कभी शॉर्ट नहीं होते। कोई भी माँ बाप दुनिया में ऐसा नहीं है जो अपने बच्चों के लिए सबसे बेस्ट नहीं करे। क्योंकि मैं दिल्ली गया कोचिंग करने, मेरे फादर की जो भी हैसियत थी वो उससे हमेशा ज्यादा पैसे मुझे देते थे। कभी उन्होंने मुझसे मना नहीं करा, जो भी वो हालात में थे, जिसमें भी थे। लेकिन उस पैसे का यूटिलाइजेशन, उस वक्त का यूटिलाइजेशन आप पे निर्भर करता है, किस तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं। बीएलएलबी एंट्रेंस कोई बड़ी चीज नहीं है जिसे निकालना, क्योंकि आज तक जो चीज एंट्रेंस निकाली वो इंसानों ने निकाली है। कोई और मंगल ग्रह से प्राणी नहीं आया जो निकाला। वो आपके अपने जज्बे पर है, आपकी अपनी एक एक्यूरेसी, एक प्लान बनाइए। इतने घंटे हमको पढ़ना है तो हमको पढ़ना है, वट एवर यू टू डू। कुछ भी हो जाए दुनिया में, इधर से उधर हो जाए, आपको वो काम करना है तो आपको वो काम करना है। इतने घंटे आपको देने हैं, आप जीतना शुरू हो जाएंगे उसी दिन से, जिस दिन आप अपने प्लान को मानना शुरू कर देंगे। और वही सबसे बड़ी एक चीज होती है। और गाइडेंस, लास्ट ईयर के एग्जामिनेशन पेपर्स उठाओ आप, क्या क्या आया है, किस किस एरिया से आया, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। पवन एंड अमर वाशने आर डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब। दे आर मेकिंग एवरीथिंग पॉसिबल फॉर यू पीपल। कि कितना लास्ट ईयर एग्जाम्स वगैरह में क्या है, दे आर मेकिंग इट पॉसिबल। एंड we are fortunate enough that you are living in Aligarh Muslim University. आपके पास है faculty of law. We have the one of the best Asia's library in the form of Maulana's library, because I am witnessing some of my students are sitting here. और मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूँ, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और आप लोग ही आने वाले देश का भविष्य है। You are the future of the nation, and believe that, and that truth will make you one of the best persons of the society. और दूसरा बेटा, कुछ भी बन जाओ, अच्छे इंसान अगर आप नहीं बने ना तो दुनिया में कुछ नहीं। बी अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। मानवता से बढ़कर कोई भी धर्म नहीं है दुनिया में। आपको अच्छा इंसान बनना है, अच्छा जज बनना है। एक अगर आप बनोगे ना तो जो दुआएं आपको मिलेंगी और जो आप इस देश के लिए करेंगे, क्योंकि ये देश आपसे कर्जा मांगता है, क्योंकि आप उसके प्राणी हैं, आप उसके सिटीजन हैं। और आप जब तक उसका बेहतरी नहीं करेंगे, उसके समाज को आगे नहीं लेके जाएंगे, यू विल नॉट बी इन अ पोजिशन टू बी अ गुड सिटीजन। दुनिया में जब आप आए ना, कबीर दास्ती का एक दोहा है, मुझे याद आ रहा, मेरी माँ हमेशा मुझे सुनाती है। जब हम पैदा हुए जग हंसे और हम रोए। जब हम पैदा हुए जग हंसे और हम रोए। कुछ ऐसी करनी कर चलो, कुछ ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे और लोग रोए। दैट हैज टू बी द लाइफ, दैट हैज टू बी वन ऑफ द रिक्वायरमेंट। ठीक है, खूब मेहनत करो, वी आर ऑलवेज देयर। एंड दुनिया में सिर्फ और सिर्फ आपको आप हरा सकते हैं, और आपको सिर्फ जिता सकता है तो आपका अपनी सोच। तो हमेशा सोच बड़ी रखिए, एंड नोबडी कैन डिफीट यू इन दिस लाइन। एंड माय गुड विशेस टू ऑल ऑफ यू, टू यंग इंडिया, because you are the future of this nation. So create yourself, innovate yourself, and consolidate yourself for the betterment of the society, because we need you and this nation needs you. Thank you very much. Thank you, sir, for such a motivational speech. Now I request Mr. Amar Vashne to honor the chief guest of the day, Professor Dr. Mohammad Ashraf, and present a bouquet to him. I now request Mr. Amar Vashne to also present a shawl to the chief guest. I now request Mr. Amar Vashne to also honor Assistant Professor Gaurav Vashne, sir.
Thank you, both of you, sir, for being here. Also, I request Amar Mashne sir again to present the memento to Ashraf sir. It was indeed a great pleasure and privilege for all of us to have the two great speakers amongst us from the Faculty of Law, AMU. And because I strongly believe after these two lectures, this must be very clear to you that law is no more an enigma. Because we started with this question that law is an enigma, a conundrum, something which cannot be answered, because it creates a lot of fickle-mindedness amongst us, that where to go, what to do after completing law. I have been a victim of this. Like what to pursue, whether should I go for IAS, whether I should go for PCSJ, whether I should go for litigation, because most of us suggested me to go for practice area also and litigation, and to go into the litigation area. But this is something like we need these kinds of lectures to do away and wean away all kinds of fickle-mindedness and create a strong outlook towards our objectives and goals. So I really thank both of the speakers today to have enlightened us with such great words and such motivational words, because it was indeed needed. Thank you so much, sir. And with this program comes to an end. And I thank all of you to be here. And it's going to be an interaction between you and me now. So I thank all of you, sir. So I won't take much of your time now because already it's done. And things are very clear to you. But soon I'm not sure, but I'm going to, if you are continuing here in this institute, because I was not getting time to come here and visit this place because of my professional work. क्योंकि कोविड के बाद से काम रिज्यूम हुआ है तो एकदम से सारी उसी में मसरूफियात थी. अब जो है कभी हो सकता है वीकली मैं यहाँ पर आऊँ और आपकी क्लास लूँ, अभी आई एम नॉट श्योर, उसके लिए भी आई एम नॉट श्योर. बट आप में से कितने यहाँ पे PCSJ के बैच से हैं? अच्छा, यू हैव कंप्लीटेड लॉ? नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है, जो PCSJ के लिए यहाँ पर तैयारी करें, वो बैच अलग है क्या? अच्छा, आप इधर अभी से प्रिपेयर कर रहे हैं. अच्छा, तब तो होना ही है. जब अभी से कर रहे हैं तो फिर तो होना ही है. नहीं, मुझे लगा अभी आप लोग एंट्रेंस के ही लिए सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, PCSJ के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं. खैर, बहरहाल तो बात यहीं से शुरू हुई थी कि आपने जैसे कहा था ना, एलोक्वेंसी बहुत जरूरी होती है. और शायद अशरफ सर ने भी यहाँ से बात शुरू की थी कि जब आप लॉयर्स का क्या है 3 to 4 lakhs पर मंथ आराम से कमा रहे हैं आजकल हर ही जगह पे. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रैक्टिस जो पहले जमाने में इतनी ज्यादा ल्यूक्रेटिव नहीं होती थी, आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रैक्टिस जो है वो इतनी ज्यादा ल्यूक्रेटिव हो चुकी है कि पीपल डू नॉट ऑप्ट टू गो फॉर डिफरेंट गुड हायर पोजीशंस. हाई कोर्ट में जाके देखिए, जो बहुत ज्यादा ल्यूक्रेटिव पोजीशंस प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी ही, वो रिफ्यूज कर देते हैं ऑफर. वो जज नहीं बनना चाहते क्योंकि वो एक हियरिंग का उतना लेते हैं जितना मंथली एक जज की सैलरी होती है. बट ये मोटिवेशन आपका नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिस इज प्योरली अ मटेरियलिस्टिक अप्रोच. अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं, जाहिर सी बात है, लिटिगेशन का अपना एक अलग मजा है. पैसे से हट के मैं बोल रहा हूँ, पैसा नहीं, बट लिटिगेशन का अपना एक मजा है. इफ यू आर एन आर्डेंट स्पीकर, इफ यू हैव अ गुड एलोक्वेंसी, यू विल एंजॉय लिटिगेशन ऑल्सो. क्योंकि स्टैंडिंग देयर ऑन द डायस, arguing before the high court bench is something which is like कहना चाहिए इसका एक, हाँ, it's not everyone's cup of tea, but जो लोग अच्छे हैं इसमें, जो लोग अच्छे हैं, जिनकी मोटिव स्किल्स बहुत अच्छी हैं, जो जानते हैं एडवोकेसी क्या होती है, कि सामने खड़े होके हाउ यू हैव टू आर्ग्यू, हाउ यू हैव टू प्रेजेंट योर केस,
वो चीज शायद जो आज मोस्ट सक्सेसफुल लॉयर्स हैं उन्हीं के पास है. बहरहाल, विद दिस आई एम एंडिंग माय लेक्चर एंड दैट्स ऑल.